Yes. Yes. Now, can you see me? Yes. Yes. Hello. Yes, Yeah. sir. Welcome, Dr. Panikar and Dr. Anuj Maheshwari on Welcome, our Bansi. social stage. Hello, everyone. Thank you. Hello. Thank you, Hello. Bansi. Hello. Good evening, Shalini, how everyone. are you? Purvi, Amit, Hello, thank sir. you. Hello, sir. Yes. So we're all live. Yes. A very, So let us very start. good evening to everyone who's tuned in today for another episode of Diabetes Bites. This is part of the Social Connect initiative from the RSSDI in an attempt to reach out to all the doctors as well as the common man, our patients, their relatives, and everybody to create an awareness for diabetes. We all know India is in the middle of a pandemic, but we have already been fighting with another epidemic, which is the diabetes epidemic, and the numbers in India are very, very alarming. So today we will all be gathered here to discuss and have a little more conversation and insight into what can we do about diabetes as doctors and healthcare practitioners. Before we do that, I would like to introduce our president, Dr. Banshi Sabu, to everyone and request Dr. Banshi to kindly come and say a note of welcome to everyone. Thank you, Shalini. First of all, welcome on this RSSDA social media page. I welcome here today Dr. Vijay Panikar, who is RSSDI Senior Executive Member. I also welcome Dr. Anuj Maheshwari, who is a Vice President of RSSDI, National RSSDI. This unique program, which is designed by RSSDI and for which primarily I am thankful to Dr. Shalini, who is Executive Member of RSSDI, Dr. Amit Gupta and Dr. Purvi Chawla for their hard working. And every time they come with a new idea on this social page. This primarily the idea of this RSSDI social media page is to increase the awareness for diabetes, and at the same time we also want to increase the awareness for RSSDI itself, that how what we are working for. We are working not only for the education of our doctor colleague, but at the same time we are doing a lot of research and we do a lot of activities which is primarily increasing the awareness for diabetes. The purpose of increasing awareness for diabetes, as we know that diabetes is increasing in our country, as Shalini was talking of COVID, but at the same time we know this is also a bigger pandemic which we are having since last more than 2 decades. And what we want prevention of diabetes and at least prevention of diabetes complication. With these few words, I once again welcome Dr. Vijay Panikar and Dr. Anuj Mestri, and thanks to Dr. Shalini, Amit, and Dr. Purvi Chawla. This interaction will be in both the language, in English as well as in Hindi. So I will request Dr. Anuj and Vijay Panikar to use the local language, which is, so we are having more than 10,000 persons who are following us, and every time we get more and more followers for our this page. And as today we have Dr. Vijay Panikar from Mumbai and Dr. Anuj Maheshwari from Uttar Pradesh, which is Uttam Pradesh, a biggest state of our country. So I am sure today we will have more 10,000 followers from our country. So I will request them to talk in both the language, in English as well as in Hindi. Once again, thank you, Shalini, for giving me an opportunity. Thank you very much. Thank you so Thank you, much, Bansi. sir. Thank you. Thank you Thank for you. nice introduction calling our state Uttam Pradesh. Thank you, Bansi. It is Uttam Pradesh. Okay. Yes, So, friends, today we definitely. have two very eminent and senior people with us to share their knowledge and expertise. We have Dr. Professor Vijay Panikar, Honorary Consultant, Department of Endocrinology, Diabetes and Metabolism from Leelavati Hospital, Mumbai. Sir is an eminent member in this field, and he does not really need an introduction. He's the past president, College of Physicians and Surgeons of Bombay, past chairman of the RSSDI Maharashtra chapter, ex-vice president RSSDI,
and ex-professor of medicine from KJ Somaya Medical College. He has huge number of publications, has written chapters in books, and has pioneering work on triple drug therapy. We also have Dr. Anuj Maheshwari with us. He is the Vice President of RSSDI as well as Governor-elect of the American College of Physicians India chapter. He is also Professor and Head in Medicine from BBD University, Lucknow. He is PhD and DNB teacher for the last 8 years, has more than 75 papers, presentations on international and national fora. He's got a huge amount of publications, lot of awards, recipient of various achievements and awards, the Health Icon Award, and the Marvelous Personality of the Year 27 award. So friends, when we talk of diabetes, one thing that stands out is the burden of diabetes in India. We know that India is second to China when it comes to numbers of people who have diabetes. But what is alarming is we always talk of the disease. We do not talk of the roots of the disease. And that is what we are going to do today as doctors. Someone very rightly said that disease can rarely be eliminated by early diagnosis or by the best of treatments. But the actual prevention is actually the way of eliminating a disease, because an ounce of prevention is worth a pound of cure. So friends, when we talk of diabetes, we tend to overlook the burden of pre-diabetes, which is a stage, a window of opportunity where you can do something to prevent progression to diabetes. And today's entire conversation with our two experts is based on pre-diabetes and diabetes prevention as well as early screening of diabetes. So with this, let's first talk about what exactly is pre-diabetes. Dr. Panikkar, can you just tell us in simple terms on when a person says, I have pre-diabetes, or when a patient comes to you and you tell him that so and so you have pre-diabetes, what does it actually mean to the patient? Thanks, Sir, Shalini. excuse me. Yes. Just so that the video quality and the audio quality is enhanced, may I request if all speakers except Dr. Panikkar can go on mute now. Okay. Yeah. Shalini, excellent introduction you have given. It is a fact that today we are living with an epidemic of COVID, which is spreading fast and wide across the country, affecting many people, killing many people. But there is a ray of hope there. And at the same time, we are also faced with an epidemic of diabetes. And it's huge. At the moment, we are number 2, just behind China, but very soon we will be overtaking China the way things are going. And that's not something to be really proud of, because diabetes basically is a bad disease, because diabetes can affect every organ and system in the patient's body. And if somebody gets diabetes at the age of 30, studies have shown that they stand to lose 10 to 15 years of their life. That is the ground reality. Now, if there is a way that we can prevent somebody from being diabetes, वाह, उससे अच्छा क्या हो सकता है? Prevention is better than cure. And how do we prevent? And why do we prevent? And when do we prevent? That is the primary question. So when you say pre-diabetes, I won't go into the technical terms of sugar should be so much and this should be so much to call it pre-diabetes, but a person who is likely to become diabetic in the near future is pre-diabetic. He would have borderline sugars which are slightly more than what is normal. Fasting or post-lunch, he could have an HbA1c which is slightly more than the normal, but he is not yet in the level where you would label him as diabetic. So here basically what you need to do is such patients should be identified easily, quickly, and treatment instituted. Now, why are we getting this diabetes? See, basically we were a poor country. We had no food. I remember as a student, we had ration shops. I had to stand in line to buy a ration for the whole month. But today you have a McDonald's and a Vada Pav and a KFC and food is plenty.
And that is what has led to a lot of changes in our lifestyle. We as a nation have become very sedentary. I remember in the year 1982, when I came back to India, my society, which had 80 flats, there were only 2 cars in that society. And boys, and including me, we used to play cricket there in the ground. Today, what is the situation? Every flat has 2 cars, and there is no place to walk. There is no place to park. Visitors' cars are not allowed. That is the ground reality. So, if we can spot a pre-diabetic and try and control him and teach him the proper methods of prevention, I think we will be doing yeoman service. But one thing I would like to tell you, every Indian should be considered as a pre-diabetic. And I think we need to universally bring in this basic concept that we need to have a lifestyle modification, we need to be more fitness conscious, and we need to have more of home food than the fast food. I think from here, Shalini. Absolutely, sir. You know, one thing that I really agree with you is we as a nation are a sedentary population. And Correct. that is probably one of the most important reasons why diabetes is exploding in our country. So, Dr. Anuj, taking it forward, sir said it is very important to spot a pre-diabetic. So, what are the warning signs of a pre-diabetic? What should I look for if I want to see whether I am a pre-diabetic or not? Yes, very nice question. But I would like to have a little correction. We are actually not the sedentary nation. We are becoming a sedentary nation. We are developing the sedentary habits very fast. And because of what, our next generation is going to be sedentary nation. हमारे यहाँ आजकल की जो नई जनरेशन है वो क्या करती है, रात में देर तक जगती है. They keep on lighting on till late night और सुबह देर से सो के उठते हैं. इन लोगों ने नेचर के अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया. खाने के लिए भी दे यूजुअली keep on eating in the night more of the times. They keep on having the parties in the night, in the late night. तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल का एकदम से चेंज हुआ, डॉक्टर पानीकर ने कहा कि पहले एक घर में, पहले पूरे मोहल्ले में एक कार होती थी, अभी एक घर में 2 कार होती हैं. हस्बैंड वाइफ की भी अलग अलग कार होती है, 2 भाइयों की भी अलग अलग कार होती है. तो हमारा जो लग्जरी लेवल है अचानक एकदम से इतना बढ़ गया कि हम ऑफिस में भी अगर जो क्लर्क भी बैठता है या हमारे बाहर जो टेक्नीशियन भी बैठता है उसको भी हम रिवॉल्विंग चेयर देते हैं. तो उसको भी घूमने के लिए अपनी बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता. और जाने के लिए हम लोग कार यूज करते हैं, कार भी एयर कंडीशन कारें हैं. चेंजेस इतनी ज्यादा बड़ी हैं. मैं आपको अगर शेयर करूं एक अपना एक्सपीरियंस, व्हेन आई वाज इन द मेडिकल स्कूल, उस समय का मुझे याद है कि एक न्यूज़पेपर में एक हेडिंग छपी थी. एट दैट टाइम श्री राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर. तो न्यूज़ छपी थी कि एक मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट में, माधवराव सिंधिया, उन्होंने एसी लगा दिया था कार में, तो उस पर पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो गया था. तो एक जमाना वो था कि एसी लगाने पे पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो गया था, और आजकल हर घर में, हर कमरे में एसी लगा हुआ है. तो ये जो लग्जरी लेवल है और हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों की एकदम से कम हुई इस लग्जरी लेवल के आने से, ये हमारी डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है. और हमें कैसे इसे पहचानना चाहिए. वो सारे लोग जो इस तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो सारे लोग जो कि वजन ज्यादा लेकर के चल रहे हैं, जिनका हाइट के हिसाब से सही नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? बहुत आराम से इसको पता लगा सकते हैं. अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, 100 से माइनस करिए. अगर जितना वजन आ रहा है उससे अगर ज्यादा वजन है तो आप ओवरवेट है, और अगर उससे 20 किलो ज्यादा है तो आप ओबेसिटी में आते हैं. ओबेसिटी में अगर आए और ओवरवेट भी अगर हैं तो अपने वजन को नॉर्मल करने की कोशिश करें. और साथ ही ये वो लोग हैं जिनके लिए हमें प्री डायबिटीज के लिए जिनको एक्सप्लोर करना है. इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन है वो है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट. जो आज डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, दे आर ऑन द हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, और उनको हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनमें हम ये टेस्ट इनको डायबिटीज
हो रही है। इसके अलावा जो बाकी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, जैसे जिनका हाइपरटेंशन है या जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो और इस तरह की थायराइड की बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा कहते हैं कि जब डायबिटीज डायग्नोस होती है, जो आज की हमारी कट ऑफ वैल्यू है, इसके हिसाब से जब डायबिटीज डायग्नोस होती है, उसके 10 साल पहले से पेशेंट को हार्ट डिजीज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कई बार यहाँ तक होता है कि डायबिटीज डायग्नोस होने के पहले हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ जो डायबिटीज की डायग्नोसिस है वो भी धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है, जिसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब पहले 140 पे डायबिटीज मानते थे, अभी 110 पे मानने लगे बीच में, फिर अभी 100 के नीचे कहते हैं कि आपको नॉर्मल है। और तो ये जो कट ऑफ का नीचे जाना है, ये भी शायद इसी वजह से है कि हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को कैच देम यंग, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ ले, जिससे पहले कि वो कॉम्प्लिकेशंस में या ऐसी स्थिति में जाएं जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। बिल्कुल, आपने ये बहुत एक अच्छी बात कही कि प्री डायबिटीज में एक तो जो हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो आजकल कोविड में जैसे लॉकडाउन्स हैं, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है। लेट सोना, उल्टा सीधा खाना, ये सारी चीजें हमारा वेट बढ़ा रही हैं, हमारी एक्टिविटी लेवल्स कम हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें प्री डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। तो डॉक्टर पानीकर, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्री डायबिटीज, इज इट अ डिजीज इन इटसेल्फ, or do you look at it as a window of opportunity to kind of halt the progression of a disease to diabetes? What is your concept on this? It is both. It's a window of opportunity to prevent and treat, and it is a disease by itself. Because if you see, जो भी डायबिटीज के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि हार्ट का है, पैरालिसिस, स्ट्रोक का है, ये सब डायबिटीज शुरू होने से 15 साल पहले से ही सब लफड़े चालू रहते हैं। तो वी आर इन अ स्टेट जहां ऑलरेडी सब माहौल बन चुका है पेशेंट को प्रॉब्लम होने को, तो जल्दी से जल्दी अपन उसको इलाज करें और उस पर अमल करें तो वो बेस्ट है। तो ये प्री डायबिटीज को लाइटली नहीं लेना है। अरे प्री डायबिटीज भी होने के पहले से ही चालू करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्री डायबिटिक गेट इनटू फिटनेस। मैं हमेशा कहता हूँ रन इंडिया रन। सब रोज एक 40 मिनट चलने चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा लाइफ में। देखो वजन कम करना बहुत आसान नहीं है, बट वो भी थोड़े डाइट में कंट्रोल करो, मीठा कम करो, तेल घी कम करो, बाकी सब इज्जत से लिमिट में खाओ। बट मेनली फिजिकल फिटनेस पे जरा ध्यान दोगे तो ये डायबिटीज को हम धकेल सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू इट। यस। So there's a saying that the greatest medicine of all is to teach people how not to need a medicine. And that Absolutely. that's entirely the concept behind catching a person even before he gets pre-diabetic. So do you think there are some tests that we need to screen the patient for pre-diabetes if you are suspecting pre-diabetes, or is it just something that you look at a patient and you say this is pre-diabetes? This is question to me. Yes. Dr. Anuj, you can take this Okay. question. Yes. Okay. Of course, this is a very good question. Whenever we come across a patient or a person who is having family history of diabetes, having higher weight, having habits which may cause him diabetes, then it is definitely becomes an indication to check his blood sugar level. Apart from that, there are certain things which hints us कि हमें इस पेशेंट में ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। जैसे अचानक किसी का वजन गिरना शुरू हो जाए। वजन बढ़ना भी डायबिटीज में होता है, पर जब डायबिटीज पूरी तरीके से आ जाती है या ये प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जब हम एंटर कर जाते हैं तो वजन तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। और वजन जैसे ही गिरना शुरू हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हमारे बॉडी में हो रहा है। यहाँ तक कि कई बार 100 किलो के ऊपर भी आपका वजन है और अब 95 आया तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो चलो बहुत अच्छा हो रहा है,
अब हमारा वजन 5-6 किलो कम हो गया, पर उनको ये देखना चाहिए कि अगर ये बिना किसी एफर्ट्स के हो रहा है, बिना किसी प्रयास के हो रहा है, तो प्रोबेबली ये डायबिटीज होने की एक सिग्नल हो सकता है और इसको यहीं पर पकड़ने की जरूरत है। जैसा डॉक्टर पानीकर ने कहा कि जो एक सबसे बढ़िया दवाई है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बिना पैसे की दवाई है और बिना साइड इफेक्ट्स की दवाई है। इसको अगर हम करना शुरू करें और शायद यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। एक समय था आज से 30 साल 40 साल पहले कि हमारे घर में लोग कपड़े खुद धोते थे, साइकिल से दफ्तर जाते थे, हमारे यहाँ लोग आटा भी चक्की, घर पे घुमाने वाली चक्की से आटा पीसा जाता था। लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज आर बीइंग डन, बट अभी क्या है, सब चीज के लिए मशीन है। अभी हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई। अगर हम किसी भी तरीके से उस फिजिकल एक्टिविटी को वापस ले आएंगे तो प्रोबेबली हम शायद फिर उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां हमारे बहुत कम लोगों को डायबिटीज थी हमारे देश में, क्योंकि जीन्स तो हमारे वही हैं, जीन्स हमारे में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने लाइफ स्टाइल, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैज बीन मोर प्रिडोमिनेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जेनेटिक फैक्टर्स शायद उतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं है आज की डायबिटीज और प्री डायबिटीज के आने में। So, Dr. Panikar, when we talk about pre-diabetes and the role of exercise and lifestyle, the entire aim is to prevent conversion to diabetes. Why is it important? Is pre-diabetes also related to some complications per se, even before the patient becomes diabetic? Why do I have to be so careful if I am pre-diabetic? See, like Dr. Anuj was also mentioning, our lifestyles have changed. पहले साइकिल में जाता था, देखो अभी आज गाड़ी में जाते हो, अच्छी बात है। वो पहले आटा हम घर में पीसते थे, अभी मशीन में पीसते, वो अच्छी बात है। We have improved, we have become affluent, but we should not forget that we need physical fitness. तो रोज एक 40 मिनट चलने का अगर करे तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये क्यों प्रिवेंट करना चाहिए? देखो भले डायबिटीज हो या नहीं हो, फिट रहना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वेदर यू डायबिटीज या नो डायबिटीज। और उसके साइड इफेक्ट में आप डायबिटीज भी प्रिवेंट करते हो, हार्ट प्रॉब्लम भी प्रिवेंट करते हो, ब्लड प्रेशर भी प्रिवेंट करते हो, सब कुछ। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वी हैव टू इनकलकेट दी थिंग दैट वी नीड फिजिकल फिटनेस। मेरे 2 ग्रैंड डॉटर्स है, दे आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। अरे अभी 3 महीने से घर के बाहर नहीं निकले हो, उनका क्लास ऑनलाइन क्लास हो रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। आई एम सो सरप्राइज, बट दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द रियलिटी। सो वी हैव टू एनकरेज आवर चिल्ड्रन टू प्ले, टू बी फिजिकली फिट। आजकल कोई बाहर जाके बच्चे खेलते नहीं है, वीडियो गेम खेल रहे हैं, विच इज नॉट द थिंग। एंड फास्ट फूड सबको चाहिए, KFC चाहिए, मैकडोनल्ड चाहिए, पिज्जा चाहिए। मैंने एक पेशेंट को बोला कि भैया घर का खाना खाओ, ये बाहर से मत मंगाओ, होटल में जाके मत खाओ। तो उसकी वाइफ बोलती है हाँ वो घर में ही खाते हैं लेकिन होटल से मंगा के खाते हैं। Exactly. Absolutely. Yes. डायबिटीज, प्री डायबिटीज जो है ये भी खतरनाक है। There are many studies which have shown that pre-diabetic patients can also develop complications. और आज क्या है, we are seeing younger and younger people, 25-30 years में डायबिटीज आ रहा है। पहले तो 40-50 में आता था, अभी यंगर एज में आ रहा है। और इसका कारण है चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल। Absolutely. इम्पोर्टेंट है और इसे हम ध्यान दें। Absolutely. देखो बीच में एक बार जाके अगर पिज्जा खा लिया और मैकडोनल्ड खा लिया, खाना चाहिए बट रोज नहीं। गेट इनटू अ फिटनेस मोड, खुद के फिगर का शेप जरा देखो, और दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्राई टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू डू एवरीथिंग। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। I think health is an investment which is like money. You do not understand the importance of it till you've lost it. So as simple as that, when you are pre-diabetic, this is a stage where since you are not getting any major problems, you're not aware that you need to do something. And eventually once you've turned into diabetic or you start getting complications,
that is the time when the battle is half lost. So Dr. Yes. Anuj, taking it forward, we said lifestyle and diet has a very important role to play in reducing obesity and in preventing pre-diabetes and conversion of pre-diabetes to diabetes, which is very important. वहां से हम आगे चलते हैं. इज देयर एनी ट्रीटमेंट? अब सपोज मुझे, अगर मैं आज प्री डायबिटिक हूँ, तो ठीक है, मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे लाइफस्टाइल ठीक करना है, मुझे खाने पीने का संतुलन मेंटेन करना है, लेकिन क्या इस प्री डायबिटीज को अगर हम एक डिजीज स्टेट मान लो सपोज, तो क्या इसमें कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत है? आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन. I will start from one of the very nice incident. One of my colleague who is professor in my college, he asked me, Dr. Anuj, मेरे दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज थी, is there any chance कि मैं डायबिटीज से बच सकूं? बिल्कुल. यस, बिल्कुल है आपके पास एक ऐसा चांस. कहते क्या है कि अगर आप अपनी डायबिटीज को पोस्टपोन करते रहे तो शायद आपकी डायबिटीज आपके डेथ होने के पहले नहीं आएगी आपके पास, एंड डेथ तक पोस्टपोन होती रहेगी. दैट वाज द थिंग व्हाट आवर फोरफादर्स एंड आवर जो हमारे पूर्वज थे वो यही कर रहे थे, क्योंकि उनके जीन्स तो वही थे जो आज हमारे जीन्स हैं, पर वो इतना शारीरिक श्रम करते थे, इतनी फिजिकल एक्टिविटी करते थे. अपने खाने पीने में उनका, वहाँ उस जमाने में तो पिज्जा हट एंड ऑल दीज थिंग्स है नहीं, तो वो उनका दाल रोटी चावल सब्जी जो उनका एक न्यूट्रिशियस फूड है, ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता था, पर वो जो कार्बोहाइड्रेट खाते थे उसको खर्च कर लेते थे. घी भी खाते थे, इवन वो सैचुरेटेड फैटी एसिड भी खाते थे, पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी वो कंज्यूम कर लेते थे, उसको कलेक्ट नहीं होने देते थे, जिसके वजह से उनको कभी भी डायबिटीज रिफ्लेक्ट नहीं होती थी. आज हम क्या करते हैं कि आज हमारे यहाँ 20 से 25 साल के लोग बच्चों में भी डायबिटीज रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीजें छोड़ दी. फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, फिजिकल एक्टिविटी जीरो कर दी. डॉक्टर पानिकर ने बताया सारे गेम भी अब मोबाइल पे ही होते हैं. अब कोई भी गेम हमारा फिजिकल होता ही नहीं है. स्कूलों से सारे प्लेग्राउंड ही खत्म हो गए हैं. आप देखिए, शायद ही कोई स्कूल ऐसा मिलेगा जिसमें आपको एक साइजेबल प्लेग्राउंड मिल जाए. और लोगों को खेलने का, पहले हम लोग का खेलने का एक पीरियड होता था, वो खेलने का पीरियड भी खत्म कर दिया गया. अब सारे टाइम बच्चे पढ़ते हैं, घर आके भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, फिर कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, मूवी देखते हैं, वो भी कंप्यूटर पे ही देखते हैं, ट्यूशन भी. बिल्कुल. ये सारे जो हमारे जिनको हमें ठीक करना है, तो लाइफ स्टाइल को हमें ठीक करना ही पड़ेगा. तो उसका यही तरीका है कि हम ज्यादा एक्सरसाइज करें, हम इन सब चीजों को बैलेंस करें एक्सरसाइज करके, और अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करें. अगर हम ऐसा करते हैं तो पहले हम अपनी प्री डायबिटीज को पोस्टपोन करते रहेंगे, और प्री डायबिटीज पोस्टपोन होती रहेगी तो फिर डायबिटीज ऑटोमेटिकली पोस्टपोन होती रहेगी, एंड इट विल बी पोस्टपोन टिल योर डेथ. So that is the way of living, even if your all siblings and parents, both parents are diabetic. तो दोस्तों, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जो बार बार एक बात पे हाईलाइट कर रहे हैं, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो बस अब तो मेरा एक सेंटेंस लिखा गया कि मुझे डायबिटीज होना ही है. आप अभी भी इन स्पाइट ऑफ योर जेनेटिक्स, अगर आप अपने मॉडिफाइबल फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो अभी भी चांस है कि आप प्री डायबिटीज एंड इवन डायबिटीज से बच सकते हैं. तो करना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, मुंह कम चलाना है, पाँव ज्यादा चलाने हैं, है ना. तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है. अगर आप लॉकडाउन में भी हो, बहुत से लोग कहते हैं जी पार्क नहीं जा सकते, जिम बंद हो गया, तो अब एक्टिविटी कैसे करेंगे? तो आप अपने घर में टहलना शुरू कीजिए. आधा पौना घंटा आप एक कमरे से दूसरे कमरे में भी टहल लेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर दैट मैटर एवरी स्टेप यू टेक काउंट्स. बिकॉज आपको अगर टीवी का चैनल भी चेंज करना है ना, तो आज तो हम बेड पे बैठे बैठे रिमोट से चैनल चेंज करते हैं. उसके बजाय अगर आप चल के जा रहे हैं, एक गिलास पानी पीने जा रहे हैं, तो एक कदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बॉटम लाइन क्या है कि हमें अपना वेट कंट्रोल करना है, हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, हम क्या खा पी रहे हैं हमें उसे कंट्रोल करना है. तो डेफिनेटली हम डायबिटीज से अभी भी बच सकते हैं. So moving forward, when it comes to screening for diabetes, Dr. Panikar, I would like to ask you, who is the population who should screen themselves for pre-diabetes or for diabetes? You know, I am a common man. I'm asking you, how do you want me? When should I look for pre-diabetes or diabetes? What tests should I do?
See, basically, like I said, diabetes is quite common in India, and we are genetically primed to become diabetic. And like we were discussing, it is like saying कि पिस्तौल में गोली तो भरी हुई है, लेकिन ट्रिगर आपके हाथ में है कि उसको कब फायर करे. तो अगर आप ट्रिगर फायर नहीं करें, यानी एक्सरसाइज करें, वेट रिडक्शन करें, फिजिकली फिट रहे, तो बंदूक चलाने की गोली टाइम ही नहीं आएगा. अभी who has to do the test? Everybody above the age of 30, whenever he is going for any blood test, should always ask for a blood sugar. And it's a very simple test, can be done. Your family doctor के पास जाएगा तो भी वो जरा चेक करके देख लेगा. So this is known as opportunistic testing. जब भी मौका मिले एक बार शुगर का तो उसमें होना ही चाहिए. फॉर एनी रीजन अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो, अगर आपको स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए ही टेस्ट करना है तो फास्टिंग शुगर, 2 आवर्स आफ्टर लंच शुगर, एक HbA1c करके टेस्ट आती है वो भी कर सकते हो, एक लिपिड प्रोफाइल करके आती है टेस्ट वो भी कर सकते हो, क्योंकि डायबिटिक में वो लिपिड प्रोफाइल में भी एबनॉर्मलिटी आती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL. तो अगर करो, और आजकल तो सब जगह पैकेज है, वो 1000 रुपए में कुछ 50-60 टेस्ट हो जाते हैं जिसमें ये सब कवर हो जाता है. सो दैट कुड बी डन. बट 30 साल के ऊपर इस बीच में तो टेस्ट करना चाहिए. उसके नीचे किसको टेस्ट करना चाहिए? जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज है, खास तौर पे अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है और वो अगर खुद मोटा हो, ओबेस हो, वजन ज्यादा हो, फिजिकल फिटनेस नहीं हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी पेट बड़ी हो. अगर पेट बड़ी है दैट बिकम्स अ वेरी इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर कि इसको आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस है. तो ये एक अलग ग्रुप आ जाता है कि यंग टीनेजर, एडोलेसेंट हु आर ओबीज विद वेस्ट ओबेसिटी, तो उनमें बीच में अगर कभी भी टेस्ट करने का चांस मिला तो शुगर भी करा लेने का. बिल्कुल बिल्कुल. 30 साल के ऊपर तो अपने इंडियंस में सबको करना जरूरी है, करते रहने का, बट अवॉइड करो. अरे रोज 40 मिनट चलने को जाओ यार, लाइफ में खुशी रहो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yes. So डॉक्टर, थैंक यू सर. सो डॉक्टर अनुज, टेकिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, जब हम एक हाई रिस्क ग्रुप की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लेडीज का, फीमेल्स का, जेस्टेशनल डायबिटीज का. जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे हम सब जानते हैं, हमने ये डिस्कशन किया था अपने डायबिटीज बाइट्स के फर्स्ट एडिशन में. जेस्टेशनल डायबिटीज एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ डायबिटीज है जो केवल प्रेगनेंसी में आती है और मोस्ट ऑफ द लेडीज में डिलीवरी होते ही चली जाती है, लेकिन ये एक दस्तक होती है टुवर्ड्स डायबिटीज. तो क्या आप इस पे इलैबोरेट करना चाहेंगे? Right, Shalini, it's really very true that this is gestational diabetes is actually not a diabetes which will disappear after the pregnancy. ये वो diabetes नहीं है जो कि pregnancy के बाद खत्म हो जा रही है. In fact, gestational diabetes हमें ये मौका दे रही है कि हम उन महिलाओं को पहचाने जो कि आगे आने वाले वक्त में डायबिटिक होने वाली हैं. अभी तक का जो हमारे पास स्टडीज अवेलेबल हैं उसमें 35 से लेकर के 50% तक महिलाएं जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज से पीड़ित होती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डेवलप करती हैं, वो आगे चल के 10 साल के अंदर टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर लेती हैं. तो अगर हमें उनको रोकना है तो हमें उनकी प्रेगनेंसी में डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करना है. इसके अलावा जो बच्चा पैदा होने वाला है वो आगे चल करके डायबिटिक होगा. तो जेस्टेशनल डायबिटीज इज ए रूट कॉज ऑफ द डायबिटीज. अगर हम जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल कर लें तो हम 2 जनरेशन में एक साथ शुगर डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं. और इसी चीज को लेकर के हम लोगों ने दैनिक जागरण के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका स्लोगन दिया था, एक जांच से बचे 2 जान. कि मेरा कहना यह है कि एक जांच से सिर्फ 2 जान नहीं बचती हैं, एक जांच से 2 जनरेशन बच रही हैं. और हमारे इंडिया की जो एक डायबिटीज बर्डन है वो कम हो रही है. जो हमारा कैपिटल और नेक्स्ट टू कैपिटल ऑफ डायबिटीज है हमारा देश, वो शायद और पीछे आ सकता है अगर हम जेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ थोड़ा ध्यान दें.
बस एक चीज लोगों को याद रखनी चाहिए कि जेस्टेशनल डायबिटीज का जो कट ऑफ है वो सामान्य डायबिटीज से अलग होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। अगर हमें सामान्य डायबिटीज में नॉर्मल 100 के नीचे होता है और डायबिटीज 126 के ऊपर होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये 8 घंटे की फास्टिंग के बाद 90 के नीचे नॉर्मल है और 90 के ऊपर हम उसे डायबिटीज कहते हैं। इसके अलावा अगर 2 घंटे खाने के बाद का हम चेक कर रहे हैं तो नॉर्मली आउट ऑफ द प्रेगनेंसी, जब विमेन प्रेग्नेंट नहीं है उस समय हम 200 या इसके ऊपर डायबिटीज मानते हैं, पर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये 120 या इसके ऊपर है तो हमें इसे ठीक करना है। चाहे हम इसे डाइट से ठीक करें, चाहे हम इसे एक्सरसाइज से ठीक करें, चाहे हम दवा खा के ठीक करें या इंजेक्शन लगा के ठीक करें, इसे हर हाल में 120 के नीचे लाना है अगर हमें 2 जनरेशंस को डायबिटीज होने से बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जेस्टेशनल डायबिटीज में हम 2 जनरेशंस को बचा रहे हैं, फ्रॉम प्रोग्रेशन टू प्री डायबिटीज एंड देन डायबिटीज। डॉक्टर विनोद कुमार हमारे साथ फेसबुक पे लाइव हैं और उन्होंने एक कमेंट दिया है कि एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ बर्थ ऑफ इन्फेंट्स हु हैव हायर वेट। ये बच्चे भी फ्यूचर में, जिन बच्चों का वेट पैदाइश पे ज्यादा होता है, हमारी इंडियन कल्चर क्या है कि हट्टा कट्टा मोटा ताजा बच्चा पैदा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि बड़ा मोटा बच्चा पैदा हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ बर्थ ऑफ हेवी वेट इन्फेंट्स, हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट? डज दैट आल्सो हैव एन इम्पैक्ट? डॉक्टर पानीकर, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? देखिए, जो माँ को डायबिटीज है प्रेगनेंसी के टाइम पे और उसका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, वो शुगर ज्यादा होने के कारण वो बच्चा जो पल रहा है पेट में उसको ज्यादा ग्लूकोज मिलता है और वो मोटा होता है। तो अगर पैदाइश टाइम में वो बच्चे का वजन ज्यादा है, उसका मतलब है कि शायद माँ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज था। और जैसा डॉक्टर अनुज बता रहे थे, ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है ये डिलीवरी होने के बाद मोस्ट ऑफ द विमेन वो नॉर्मल हो जाता है। ये एक हनीमून पीरियड बोलना कि ये आगे चल के आने वाला है और ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि यू बेटर टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल, यू कैन प्रिवेंट इट कंप्लीटली, यू कैन प्रिवेंट इट। एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या, वो बेचारी लेडी डिलीवरी हो गई, खुश है, बच्चा खुश है, सब खुश है, वो खा पी के मोटी होते रहती है। That is not the done thing. It should be taken seriously कि ये मुझे वार्निंग मिली है, ये मुझे ऑलरेडी इत्तला कर चुकी है कि मैं हूँ इधर, तो उसको ध्यान देके उसको कैसे हटाया जाए उस पर अमल करें तो लाइफ में बहुत सुखी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनुज, हमारे ऑडियंस में से एक शख्स जानना चाहते हैं, आई एम डायबिटिक, डूइंग ऑल एक्सरसाइज, टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस इन डाइट, स्टिल माय HbA1c is 8. I do not want to take medicines. So just wanted to check, is it necessary to take medicine? I think ये एक ऐसा सवाल है जो हर डॉक्टर से पूछा जाता है, तो आप इनको क्या एडवाइस देंगे? बहुत अच्छा सवाल है। अगर वो एक्सरसाइज जितनी कर सकते हैं और उतनी कर रहे हैं और जितना डाइट कंट्रोल वो मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो उनको मेडिसिन जरूर लेना चाहिए। और ये मेडिसिन लेना पड़ना ऐसी बात नहीं है, इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमें मेडिसिन लेना पड़ेगी। दैट मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर गुड लाइफ, for the better life what he is going to lead। अगर वो मेडिसिन से बचने की कोशिश करेंगे तो शायद वो कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे और वो लाइफ उनकी, हम लोग अपने पेशेंट को अक्सर कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड में चल जाएगी। तो फास्ट फॉरवर्ड में अगर लाइफ को चलाने से बचाना है तो उनको निश्चित रूप से अगर वो एक्सरसाइज और डाइट पूरा कर रहे हैं तो उन्हें दवा जरूर लेना चाहिए। इसमें कोई दूसरा राय हो ही नहीं सकती किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। Can I add here? Oh sure sir, why not? Definitely sir। देखो, डायबिटीज जो है ना जिंदगी भर का साथी है, आपको छोड़ के किधर नहीं जाने वाला है, आपके साथ ही जाने वाला है। और सच्चाई ये है कि आपको सता के यहाँ से जल्दी उठाने का प्रोग्राम बना के आया है, ये सच्चाई है, डरने का कुछ नहीं। उसको इज्जत दो, लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन। और मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मेडिसिन लेना जरूरी है,
in 99.9% of the patient. और अगर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लोगे तो लाइफ लॉन्ग रहेगी, तो मेडिसिन से भागो मत। ये कोई अनाड़ी लोग बोलते हैं कि ये मेडिसिन से नुकसान होता है, किडनी को नुकसान होता है, ये सब गलत बातें हैं। अगर कोई मेडिसिन से किडनी खराब होती है तो कोई डॉक्टर आपको देने वाला नहीं है वो। So remove all this false thoughts from your mind. Listen to your doctor. Take your medicine. Live a proper life and enjoy life. Absolutely. So the mantra from both our experts for prevention of conversion from pre-diabetes to diabetes, or even a step earlier, conversion to pre-diabetes, is taking a lot of steps, doing physical exercise, losing weight, eating right, sleeping on time, getting an adequate sleep of 8 hours minimum, which is very, very important. तो बहुत सिंपल से मेजर्स हैं जिससे हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, वेट लूज करना है, एक्सरसाइज करना है, फिजिकली फिट रहना है और मेंटली पीसफुल रहना है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे बॉडी के हार्मोनल मिलियू को चेंज कर देता है, और ये भी एक बैकग्राउंड स्ट्रेस भी कई बार डायबिटीज का कारण बन सकता है। So moving on, screening is very important, and we discussed who are the patients who need to be screened for diabetes as well. जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो I would like to tell our audience कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स स्क्रीनिंग के पायोनियर्स हैं। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी अपने स्क्रीन पे इनके स्क्रीनिंग के बारे में, इनके एक्टिविटीज जो स्क्रीनिंग से रिलेटेड रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर अनुज आपके स्क्रीन पे, आपने एक विलेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है यूपी में। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये क्या प्रोजेक्ट है, आप विलेजेस में क्या कर रहे हैं? शालिनी, अक्सर ये कहा जाता है कि डायबिटीज शहरों की बीमारी है। डायबिटीज ज्यादातर उन लोगों को होती है जो शहरी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन अगर हम गाँवों में बढ़े तो आजकल हमारे गांव भी इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं और एडवांसमेंट हो रहा है कि डायबिटीज अब वहाँ भी तेजी से अपने पांव पसार रही है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब गांव में तो लोग किसान होते हैं, खेत में काम करते हैं, वहां पर तो लोग कुएं से पानी निकालते हैं, तो फिर उन्हें डायबिटीज कैसे हो सकती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि एक गांव का व्यक्ति या एक गांव की एक महिला जो कि घर से 2 किलोमीटर दूर नदी से या नहर से पानी निकाल के लाती है अपने घर के काम के लिए, अचानक एक दिन ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने उसके घर के बाहर हैंड पाइप लगवा दिया। तो ये तो तरक्की की निशानी है, होना भी चाहिए और हुआ भी। लेकिन उससे वहां उसका रोजाना जो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का वॉक था, और वो वजन लेकर के जो वॉक था, पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर के जो वो चलती थी, वो बंद हो गया, और उसके वजह से उसका फिजिकल एक्टिविटी रिलेटिवली कम हो गया, जो पहले था उससे कम हो गया। उसके वजह से नाउ दीज पीपल आर डेवलपिंग डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज भी काफी ज्यादा है। आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर्स में कई सारी महिलाएं बैठी हुई है, उनके बीच में वो शुगर टेस्ट कर रहा है, ब्लड प्रेशर टेस्ट कर रहा है। तो नाउ द पीपल आर गेटिंग अवेयर। हम लोगों ने यूपी में 4 विलेजेस सेलेक्ट किए हैं, और उन 4 विलेजेस की मिलाकर के पॉपुलेशन 10,526 है। एंड एज ऑफ नाउ उसमें हमारा डायबिटीज का जो प्रिवलेंस है वो 6 to 7% है, जो आप समझ लीजिए कि शहर की डायबिटीज से थोड़ा सा ही कम है। हम लोगों ने जब अपर स्टडी करी थी 2014 में यूपी में, तो हमें वो प्रिवलेंस मिला था 8.3%, और इस समय हमें गांवों में जो प्रेवलेंस मिल रहा है वो कहीं 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि गांवों की डायबिटीज अब शहरों की डायबिटीज का 50% नहीं है, बल्कि वो 50% से क्रॉस कर रही है। और इस चीज को रोकने के लिए ही हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, और सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम गाँव के लोगों को ये बता रहे हैं कि वो कैसे अपने लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करें। शहर के लोगों को बताना तो बहुत आसान है, पर गांव के लोगों को बताना, क्योंकि वो ऑलरेडी फिजिकल एक्टिविटी सारी कर ही रहे हैं, अब वो अपनी लाइफ में और क्या ऐसा बदलाव करेंगे कि जिससे उनको ब्लड ग्लूकोज लेवल उनका कम आ सके। लेकिन ये रेगुलर चेकअप, रेगुलर SMVG, रेगुलर उनके घर घर जाकर के चेक करना, रेगुलर उनका ब्लड प्रेशर चेक करना, रेगुलर उनको ये याद दिलाना कि आप दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। गाँव में एक टेंडेंसी होती है कि जब बीमारी ठीक हो गई तो दवा लेना बंद कर देते हैं।
वो आप कितना भी कहिए कि आपको हमेशा दवा लेनी है, उन्होंने कहा चेक कराया, नॉर्मल था, कुछ नहीं था, तो हमने दवा लेना बंद कर दिया। वहाँ दवा ले खाने को एक चीज मानते हैं। तो दैट्स व्हाई इन चीजों के लिए हमारे, इनफैक्ट दिस वाज द कॉल फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर बंशी साबू की इच्छा थी कि ये हर स्टेट में विलेज प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने उनके आह्वान पर ही ये यूपी में RSSDI विलेज प्रोजेक्ट शुरू किया, और जिसकी आप पिक्चर्स यहाँ पे देख रही हैं। बिल्कुल, मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि RSSDI का विलेज अडॉप्शन प्रोजेक्ट एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 100 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे। हर स्टेट में विलेजेस को अडॉप्ट किया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टेट्स में अभी एक्टिव भी है। तो हम हर स्टेट में कुछ एक विलेजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, और वहाँ हम डायबिटीज अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जिससे कि हम अपनी पॉपुलेशन में डायबिटीज स्क्रीनिंग भी कर सकें और डायबिटीज की प्रेवलेंस को कम कर सकें। Moving on, Dr. Panikkar, I see a few pictures where I see you talking to people, getting awards. So can you share some experiences of the activities that you have been doing? See, we have been doing a lot of activities. In fact, my students and me, we have developed a skit for diabetes. And we must have had at least 50 or 60 shows of that skit at different locations to make patient awareness कि डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसको इज्जत देने की जरूरत है। You know, instilling confidence in a diabetic that he can live happily with diabetes. So that is what we have been doing across the board. Yes. And practically all over Mumbai and many parts of Maharashtra, we have gone and given these performances like it is a, you know, like a street play kind of thing. And it has been very successful and very successfully done. Of course, I haven't done it in the last few years, but this is what we have done in a very major way. Yes, sir. So a part of our activities at doctors are not only in treating our patients of diabetes, but in spreading awareness amongst the common man to prevent diabetes and its complications, to screen for diabetes much earlier before a patient becomes symptomatic. And as part of that, both of our guests today are very, very active in their public screening programs as well. So, as a torch bearer of pre-diabetes screening, Dr. Anuj, do you recommend community screening for diabetes, or do I have to just go myself as an individual and get tested? शालिनी, एक आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि आज से 6 साल पहले हम लोगों ने एक स्टडी करी थी पूरे यूपी भर में, जिसमें हमने डायबिटीज़ की प्रेवलेंस पता लगाने की कोशिश की थी, और उसमें हमने 10,000 लोगों की डोर टू डोर सैंपलिंग की थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डायबिटीज की जितनी प्रेवलेंस आई थी उससे 2 गुना प्रेवलेंस प्री डायबिटीज की आई थी, बल्कि 2 गुने से ज्यादा। जैसे 8.3% हमें डायबिटीज की प्रेवलेंस मिली थी, और 17.1% जो कि ऑलमोस्ट 2.5 या मोर देन 2.1% और 2.2% के आसपास है, ये प्रेवलेंस हमें प्री डायबिटीज की मिली थी। तो कहने का मतलब इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जितने लोग डायबिटिक हैं उससे 2 गुने लोग डायबिटीज के दरवाजे पर खड़े हैं, और ये वो लोग हैं जिनको हम वापस लौटा सकते हैं। और here I would like again to say that window of opportunity is not only the pre-diabetes. Window of opportunity is equally the GDM also, gestational diabetes also. Diabetes in pregnancy as well as pre-diabetes, both are window of opportunity, जहां से हम अपने देश के लोगों को पीछे खींच सकते हैं और उनको इस बड़ी बीमारी में, जो कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस लेके आती है, हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये डायबिटीज का खर्चा शुरू हो जाएगा, इलाज करेंगे, लंबे समय तक चलेगा, और ऐसे होते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक हुआ, उनके खर्चे का अंदाजा लगाइए कि उनका एक बार में उतना खर्चा हो जाता है जितना कि 10 साल की डायबिटीज के इलाज में भी शायद नहीं होगा।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि वो अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जहाँ पे एजुकेशन लेवल कम है वहाँ कम्युनिटी स्क्रीनिंग करें। जैसे हमने डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग किया, इन गाँव में हम डोर टू डोर जाते हैं। अभी इन गाँव में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि गाँव के लोग अब शुगर और शुगरी प्रोडक्ट से काफी हद तक अपने आप परहेज करने लगे। आप जानते हैं कि गाँव में तो शुगर के लिए बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होता है, मिठाई के लिए बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होता है। अभी जब मैं वहां जाता हूँ अक्सर कभी लोगों से मिलने के लिए, तो मेरे लिए मिठाई पर होने का बहुत इंसिडेंट कम हो गया। तो उससे मुझे लगता है I think Dr. Anuj has a network issue. I think we just lost his signal. So Dr. Panikkar, can you just elaborate on this part again? On the pre-diabetes and the screening, the community screening aspect, how important is it? See, India is a vast country, 1.3 billion. You can't screen everybody. Absolutely. It is just not possible. And even if you screen today, that person might become diabetic after 6 months. Bilkul. So that screening process has to be continuous. Bilkul. What is basically required is generating an awareness across India on the need for fitness and prevention. Bilkul. Like it was the family planning thing. हम दो हमारे दो. बिल्कुल. एक मेरे दो यानी मेरे दो टांग. बिल्कुल. I think that can be a new mantra. That Absolutely. It should be made across India. Bilkul. Get that awareness into the people's head, and then individually they can go and test opportunity testing. See, a family doctor says you get a CBC done for a cough or cold or anything, साथ में sugar भी डाल देने का. So opportunistic screening is the best in our country. To do a mass scale screening is impossible. Is just impossible financially and practically. Absolutely, absolutely. So I think it is very important that, of course, creating awareness is the first step towards all kinds of prevention for all kinds of diseases for that matter, and especially when it comes to diabetes. डॉक्टर अनुज, जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, हमने एक बार शुगर टेस्ट करवा लिया और वो शुगर हमारा नॉर्मल है, ठीक है. अब लास्ट में हमारे पास बस कुछ एक मिनट बचे हैं, तो मैं आपसे बहुत शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि हमें कब कब टेस्ट करते रहना चाहिए. एक बार करा लिया और काफी हो गया, या हमें कुछ टाइम से चेक करते रहना चाहिए? जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से अगर आपका एक बार टेस्ट कराया और वो नॉर्मल निकला, आप उसमें प्री डायबिटीज या डायबिटीज की रेंज में नहीं आए, तो आपको 1 साल के बाद दोबारा चेक कराना चाहिए. ये रिकमेंडेशन है. पर प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा देखते हैं, कई लोग पहले भी आ जाते हैं जो डायबिटीज की या प्री डायबिटीज की रेंज में. तो ये सारा इस पे डिपेंड करता है कि उनके एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हैं, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, उनके पेरेंट्स की क्या हिस्ट्री है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वेट कैसा है. अगर आपको लगता है कि ये सारा हाई रिस्क में आ रहा है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप 6 महीने बाद चेक करा लीजिएगा या 9 महीने बाद चेक करा लीजिएगा, या उनको कंटिन्यूअस वॉच में भी रख सकते हैं. बट रिकमेंडेशन 1 साल बाद चेक कराने की. बिल्कुल. तो दोस्तों, आज हमने जब प्री डायबिटीज के बारे में जानने की कोशिश की, तो 2 चीजें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली हमें समझ में आती हैं. नंबर 1 कि प्री डायबिटीज एक वो अलार्म है जो आपको डायबिटीज की तरफ जाने से रोक सकता है. इट्स काइंड ऑफ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी wherein if you start walking, you start losing weight, you start eating right and doing just the things that you should be doing, a healthy lifestyle and good eating habits, there is still a chance that you can prevent progression from pre-diabetes to diabetes. The importance of early screening is very, very important because होता क्या है कि at times जब हमें पता ही नहीं होता, ना हम चेक करते हैं, तो एक टाइम आता है जब हम complications में लैंड कर जाते हैं. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम टाइमली इस चीज के बारे में अवेयर रहें, बिकॉज ये एक डिजीज नहीं है, ये डिजीज से एक पहले का मार्क है. अगर आप प्री डायबिटिक हैं भी तो घबराने की बात नहीं है. कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से मेजर्स, एक हेल्दी लिविंग की तरफ आपको एक कदम उठाना है. आपका एक कदम हेल्दी लिविंग की तरफ, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, वजन कम करने की तरफ, अच्छा खाने की तरफ, एक संतुलित आहार खाना है, एक बैलेंस्ड डाइट खाना है, एक अच्छा एक्सरसाइज रेजीम फॉर्म करना है. समथिंग एज सिंपल एज 45 minutes ऑफ वॉकिंग एटलीस्ट 5 days out of 7 days.
if you are able to lose even 5 to 7% of your baseline weight, there are chances that your progression from pre-diabetes to diabetes can still be prevented. So friends, we've had a very good session with our experts who have enlightened us on why pre-diabetes is important and what can we do to prevent progression of pre-diabetes to diabetes. So there is still a lot that needs to be done, and these two are pioneers in their efforts to prevent diabetes in the community. So before we end, I would like to thank our expert panelists, Dr. Anuj and Dr. Vijay Panikar, for joining us today and shedding light on the importance of pre-diabetes. So friends, the take-home message for all of us is using the 2 feet that we have, eating the right things, staying healthy, staying clear here also. Mental health is also a very important contributor to pre-diabetes because stress aggravates your sugars. So friends, be healthy, stay safe, eat the right things, exercise well, sleep well, and I'm sure all of us can definitely reduce the conversion from pre-diabetes to diabetes. With this, thank you very much for joining us today, and we look forward to you for our next session of Diabetes Bites next week, same time, and we'll see you there. Thank you so much. Stay healthy, start walking. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Thank you Thank you so so much. much for joining us. Thank you. Thank you. Thank you from all of us. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.